Hello dear students, welcome back to your own channel Digitonus, your gateway to digital education. Now this video is in continuation of my last two videos, that is for class 10th, okay, in which we were discussing about Unit 3 Relational Database Management System. In part 1 of the video, we have discussed the theory part, and in part 2 we have discussed the practical demonstration of relational database management system. So in today's video, in part 3, we are going to discuss, that is, how to create queries and how to create or set up a relationship between the tables. So let's continue with the video. So what I have done, I have opened the program, that is MS Access. Now as you have seen in my last video in part 2 of this unit 3, that we have made a database with name Demo Practical. So I am opening the same database so that we can work further. So as you can see on the left side of the screen, okay, that there is a file with the name demopractical.accdb. Okay, so I am opening this by clicking on this. Once I have opened this practical file, okay, practical demonstration part, okay, you will find that the tables which we have created, okay, is there with the name employee. In my last video, part 2, practical demonstration, we have created this table, okay, with the name employee. Now, to set up a relationship between the table, if we want to set up a relationship between the table, the basic requirement is that we need to have at least two tables. Okay, the basic requirement is that we need to have at least two tables. This is the first basic condition. Second condition is that the primary key field of one table has to be the common field of the another table. It means, if you can see here in the design view of this table, the primary key field is employee code. Okay, जो एक टेबल का प्राइमरी की फील्ड है और अगर हम दूसरी टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए. यानी अगर हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है टेबल्स के बीच में, तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दिस कि जो भी हम दूसरी टेबल बना रहे हैं, जो सेकंड टेबल हम बना रहे हैं, in that table we have to make one common field which is common in both the table, that is in table 1 and table 2. यानी table 1 में जो field है वो table 2 में भी होना चाहिए. Okay, whether it is the primary key field of the second table or not, that doesn't matter. हो सकता है वो प्राइमरी की फील्ड भी हो सेकंड टेबल का या ना भी हो, दैट डजंट मैटर, बट कंडीशन ये है कि दोनों टेबल के अंदर एक फील्ड कॉमन होना चाहिए और वो फील्ड फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की फील्ड होनी चाहिए. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट द एम्प्लॉय कोड इज द प्राइमरी की फील्ड ऑफ दिस टेबल. सो व्हेन वी हैव टू क्रिएट अ न्यू टेबल, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू मेक दिस फील्ड in other table also, in the second table also. Fine. So let's take an example. Suppose we are creating, so we are going to create, click on the create tab to create a new table. By this you can learn how you can create a new table also, and then click on table. So once you have clicked on table, you can see that a new table with the name table 1 has been created. Fine. So we are going to the design view to design the fields and their data types and set up the properties. So I am changing it. Now we have to give a name to this table. अब हमें क्या करना है, इस टेबल को एक नेम देना है, तो I am giving it as EMP underscore department. Okay, suppose I am giving it as a EMP underscore department or EMP underscore sales. Let's say it's sales, employee sales. Fine. Click on OK. Fine. Now this is the design view. Now here what you have to keep in mind, that when you are creating a table, the second table, it means that you have to keep a common field. ठीक है, हमें एक फील्ड को कॉमन रखना है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीपिंग द
field name that is EMP code. ये जो EMP code है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं EMP_code. सेकेंड टेबल जो हमने एम्प्लॉय सेल्स बनाई है उसमें हमने एक फील्ड कॉमन किया दैट इज EMP code. ठीक है, डेटा टाइप वी विल कीप इट एज नंबर. फाइन, देन वी आर कीपिंग एज एम्प्लॉय कोड हो गया है. यहाँ पे हमने नेम लिया है तो एम्प्लॉय नेम नहीं लेंगे हम. अब क्या करेंगे, वी कैन चेंज द फील्ड्स बिकॉज वी आर मेकिंग द सेल्स टेबल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय कोड EMP सेल्स नंबर, कितनी सेल्स उन्होंने की है. देन EMP what can be it is इंसेंटिव, कितना उनको इंसेंटिव मिला है सेल्स पे. ओके, एंड बोनस, कितना उनको हमने बोनस दिया है. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड अनदर टेबल विद द नेम, फील्ड नेम दैट इज EMP कोड, then EMP sales, EMP incentive and EMP bonus. Now make this as a required part. Okay, so all the fields are required, so we are changing the properties of the fields that is required. Then incentive number is there, then it is also required. Yes, then EMP bonus, it is also required. Fine. So what we have done, we have created a new table with the name employee sales, and in that what we have done, we have created 4 fields, that is EMP code. EMP code we have created because we have to keep a common field in both the tables to establish the relationship. रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए दोनों टेबल्स में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, और जो फील्ड कॉमन होगा, ठीक है ना, दैट हैज़ टू बी द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल. यानी अगर EMP कोड हमने यहाँ पे कॉमन फील्ड किया है तो EMP कोड फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट. ओके, EMP सेल्स, EMP इंटेंसिव एंड देन EMP बोनस, दैट इज वी हैव क्रिएटेड. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द डेटा शीट व्यू टू एंटर द रिकॉर्ड्स. यस, वी वांट टू सेव इट. अब यहाँ पे जब हम डेटा एंट्री करेंगे, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू कीप द सेम वैल्यूज. यानी यहाँ पे जो EMP कोड में जो वैल्यूज हमने डाली हैं 1001 से 1006 तक, सेम वैल्यू हमें यहाँ पे भी रखनी है. तो यहाँ पे 1001 एम्प्लॉय की सेल हुई है सपोज 22,000. एम्प्लॉय का इंसेंटिव सपोज इट इज 2200. एम्प्लॉय का बोनस 500. 1002 इसकी सेल हुई है 15,000. 1500 इज द बोनस, 500 इंसेंटिव एंड 500 बोनस. तो 1003 इनकी सेल हुई है 19,000. 1900 इज द इंटेंसिव एंड 500 बोनस. 1004 25,000, 2,500 bonus and 500 employee bonus. 1005 सेल हुई है 32,000 की. 3,200 इज द इंसेंटिव एंड 500 बोनस. बोनस हमने सबका सेम रखा है, इट्स 27,500 and 500 is the bonus. Fine. So what we have done, we have filled the entries, but what we have keep in mind while filling the entries, that the employee code of the first table, यानी जो codes हमने employee code में डाले थे first table में, starting from 1001 to 1006, we have kept the same code here so that there is no mismatch of data. ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमने
1001 के लिए जो डेटा डाला है एक्चुअली वो डेटा हमने किसके लिए डाला है, दैट इज फॉर द एम्प्लॉय हर्ष, ठीक है। सेम वी हैव केप्ट विथ 1002, 1003, 1004, 5 एंड 6. नाउ वी हैव फिनिश्ड मेकिंग द सेकंड टेबल. हमने अभी क्या किया, एक नई टेबल बनाई है, ठीक है ना, सो दैट वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप. Because to establish the relationship, the basic condition is that at least we have two tables. Okay. Second जो condition है वो मैंने आपको बताई है, that there should be a common field in both the tables. दोनों टेबल में एक common field होना चाहिए, and that common field has to be the primary key field of the first table. That is also mandatory. Okay. यानी फर्स्ट टेबल का जो फील्ड है वो प्राइमरी की फील्ड होना चाहिए जो हम कॉमन करेंगे सैपकिन टेबल में. ओके, तो वंस वी हैव डन दिस, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप. फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो टू द डेटाबेस टूल. ठीक है, सबसे पहले हम डेटाबेस टूल पे क्लिक करेंगे एंड देयर इज अ ऑप्शन दैट इज रिलेशनशिप. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिलेशनशिप, यू क्लिक ऑन दैट. अब यहाँ पे देखिए एक नई विंडो ओपन हुई है, डायलॉग बॉक्स, शो टेबल डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आपको टेबल्स यानी जितनी भी आपकी टेबल्स होंगी डेटाबेस में, ऑल द टेबल्स विल बी रिफ्लेक्ट हियर, वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी. सो जस्ट एज ऑफ नाउ वी हैव जस्ट टू टेबल्स, एम्प्लॉय सेल्स एंड एम्प्लॉय. तो हमारी दोनों टेबल्स यहाँ पे, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो रही हैं. तो आई हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट टेबल दैट इज एम्प्लॉय, ऐड की हमने, और हमने सेकेंड टेबल सेलेक्ट की एम्प्लॉय सेल्स एंड देन क्लिक ऑन ऐड बटन. तो ये हमारी दोनों टेबल्स रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है ना, ऐड हो चुकी हैं. क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स. नाउ हाउ टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स. ओके, कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे हम. टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप यू मस्ट सी दैट द कॉमन फील्ड, ठीक है, जो हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, बिटवीन द कॉमन फील्ड्स. यानी एम्प्लॉय कोड ऑफ द टेबल एम्प्लॉय विल बी रिलेटेड टू एम्प्लॉय कोड ऑफ द टेबल एम्प्लॉय सेल्स. ठीक है, तो यहाँ जो एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय कोड वाला फील्ड है उसको हमने सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद कीप योर माउस बटन प्रेस्ड और इसको हम ड्रैग करेंगे. ठीक है, ड्रैग करके लेके जाएंगे एम्प्लॉय सेल्स वाली टेबल पे एंड देन वी विल ड्रॉप इट ऑन द सेम नेम एम्प्लॉय कोड. ठीक है, यानी एम्प्लॉय जो टेबल है हमारी, वहाँ से हमने एम्प्लॉय कोड फील्ड को ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद उसको कहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ऑन द एम्प्लॉय कोड फील्ड ऑफ द सेकेंड टेबल. सेकेंड टेबल की एम्प्लॉय कोड फील्ड के ऊपर इसको हम ड्रैग कर दें, ड्रॉप करेंगे. तो जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स विद द नेम एडिट रिलेशनशिप. फाइन, ऊपर आपको टेबल्स के नेम दिख रहे हैं, टेबल और क्वेरी, रिलेटेड टेबल और क्वेरी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सेल्स. यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय कोड और सेकंड टेबल में भी सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय कोड. ठीक है, वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद में आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन. यानी दोनों टेबल में आप सेम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट. जैसे ही आपने क्रिएट टेबल पे क्लिक किया, क्रिएट बटन पे क्लिक किया, यू विल फाइंड अ लाइन दैट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट टेबल ऑफ एम्प्लॉय टू द सेकेंड टेबल एम्प्लॉय सेल्स. यहाँ पे आप ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये आपको विजिबल है. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स. यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है दैट इज शोन बाय दिस ब्लैक लाइन. ठीक है, आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे, दिस लाइन विल गेट एक्सटेंडेड. फाइन, दिस शोज दैट द एम्प्लॉय कोड फील्ड ऑफ द टेबल एम्प्लॉय इज नाउ in relationship with the employee code field of the table employee sales. Now why we do this relationship, why we have set up this relationship? The answer is that using this relationship we can find out the information from both the tables in one time, in a one query. अब query क्या होता है, query query means that is a question.
In general, it is a question. Suppose you have a doubt, तो you ask your query to your teacher. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट वगैरह है, तो आपकी एक क्वेरी होती है जो आप अपने टीचर से पूछते हैं. तो सेम वे, इफ वी हैव टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, ओके, अगर मुझे डेटाबेस में जो मेरा डेटा, जो मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, आई हैव टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, मुझे वहाँ से कोई डेटा को रिट्रीव करना है. सो टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वी यूज क्वेरीज. हम क्वेरीज का यूज करते हैं. नाउ हाउ टू यूज दैट? Once you have established the relationship between the two tables, now what is the advantage? We can find out the information from both the tables in a single query. ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं. क्लोज करेंगे इसको, रिलेशनशिप हमारी कंप्लीट हो गई है. देन गो टू द डेटाबेस, क्रिएट टैब. और क्रिएट टैब पे आप यहाँ पे देख रहे हैं अंडर द क्वेरीज ग्रुप देयर इज टू ऑप्शन, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन. Now, what is the difference between these two options? Query wizard और query design में क्या difference है? Query wizard means that it is a step by step guide. अगर आपको query बनानी नहीं आती है, डिज़ाइन करनी नहीं आती है, तो आप query wizard का यूज़ कर सकते हैं. It gives you a step by step guide. Okay? And query design means that you have to design it on your own. आप query को खुद से डिज़ाइन करेंगे. तो मैं क्विक क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू क्रिएट द क्वेरी ऑन माई ओन. सो आई हैव सिलेक्टेड दिस. अब यहाँ पे देखेंगे वंस वी हैव क्लिक्ड ऑन दैट क्वेरी डिज़ाइन बटन, यहाँ पे शो टेबल डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो गया है. अब ये पूछ रहा है कि हमें क्वेरी किन टेबल्स पे रन करनी है. तो आई हैव सिलेक्टेड दिस एम्प्लॉय एंड ऐड. और अगर आपको दूसरी टेबल भी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल टेबल्स पे आपको क्वेरी रन करनी है बिकॉज देयर इज अ एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू. तो आई हैव सिलेक्टेड एम्प्लॉय सेल्स ऑल्सो एंड ऐड. ठीक है, एंड क्लोज. दोनों टेबल्स हमारी यहाँ पे ऐड हो गई हैं. ठीक है ना, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सेल्स. अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, ठीक है ना, दैट इज द क्वेरी एरिया. ये हमारा क्वेरी एरिया है. यहाँ पे फील्ड्स हैं. अब आपको जो फील्ड सेलेक्ट करने हैं, यानी जिनको आपको सेलेक्ट करना है, डिस्प्ले कराना है, तो आई हैव सिलेक्टेड एम्प्लॉय कोड field of the table employee, then employee name, employee designation, employee salary. अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो सेकंड टेबल थी हमारी एम्प्लॉय सेल्स में से, एम्प्लॉय ने कितनी सेल्स की और उसको कितना इंसेंटिव मिला. आई वांट टू सी एम्प्लॉय ने कितनी सेल की और उसको कितना इंसेंटिव मिला. ठीक है, तो ये फील्ड हमने सेलेक्ट किए हैं. सेलेक्ट फील्ड का मतलब है जो हम डिस्प्ले कराएंगे. जब हम क्वेरी को रन करेंगे, ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा विल बी विजिबल टू अस. जितना हम चाहते हैं केवल उतना डेटा हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम द कंप्लीट डेटाबेस. तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 4 जो फील्ड हैं मेरे वो एम्प्लॉय टेबल्स के हैं और 2 फील्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं एम्प्लॉय सेल्स टेबल के. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर शो. यहाँ पे आप देख रहे हैं शो बटन में, ठीक है ना, दीज ऑल आर चेक. चेक का मतलब है दैट दे विल बी डिस्प्लेड. जब हम क्वेरी को रन करेंगे तो ये वाले फील्ड्स डिस्प्ले होंगे, इनके अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा. क्राइटेरिया. क्राइटेरिया का मतलब है अगर आपकी कोई कंडीशन है, ओके, सपोज अगर मैं इसको बिना क्राइटेरिया के रन करता हूँ इस क्वेरी को, तो जो भी कंप्लीट डेटा है इन फील्ड्स का दैट विल बी displayed. तो once I have done this part, अभी हम इसको complete देखेंगे, complete data without any condition, without any criteria. तो I have selected the fields from both the tables. Once I have done this, go to the design tab and there is a option, okay, run. ठीक है, to means run the query. तो when we select this option run, अब आप देखेंगे query 1 ऊपर लिखा हुआ है, employee code, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ओके, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सेल्स और एम्प्लॉय इंसेंटिव. ये सारे, ठीक है ना, जो फील्ड्स हैं, एंड दीज फील्ड्स आर फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल्स. 2 डिफरेंट टेबल से हैं. दे आर विजिबल, यानी कंप्लीट डेटा हमें विजिबल है. ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया है. एंड व्हाई it is visible from both the tables? Because we have established the relationship.
ये इसलिए पॉसिबल है कि हमें जो डेटा शो हो रहा है वो दो टेबल से एक ही टाइम पे शो हो रहा है, क्योंकि हमने टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है। फाइन, ओके, अगेन वी आर मूविंग टू द डिज़ाइन व्यू। अब कंडीशन, सपोज अभी जो हमने डेटा देखा वो कंप्लीट था। अब मैं चाहता हूं कि केवल उन एम्प्लॉय का डेटा हमें विजिबल हो जिनकी सेल 20,000 से ज़्यादा है। ओनली शो द डेटा, ठीक है ना, केवल वो डेटा शो हो जिन एम्प्लॉय की जिन्होंने सेल्स 20,000 से ज़्यादा की है। तो एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन है, तो कंडीशन हम लिखते हैं क्राइटेरिया कॉलम में, ठीक है। तो एम्प्लॉय सेल्स पे एक कंडीशन मैंने लगाई, ओनली शो मी दोज रिकॉर्ड्स, ठीक है, हुज सेल इज ग्रेटर देन 20,000, जिनकी सेल 20,000 से ज़्यादा है। तो अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं, यू कैन सी दैट ओनली 1 2 3 4 आउट ऑफ द 6 रिकॉर्ड्स, जो टोटल 6 रिकॉर्ड थे उसमें से अब केवल 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सेल, अगर आप सेल्स वाला कॉलम यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो 20,000 से ऊपर हैं, ओके। लेकिन अगर एक्चुअल सेल्स टेबल हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सेल है वो 15,000 भी है और 19,000 भी है। दो सेल्स ऐसी हैं जो लेस देन 20,000 है, ऑफ एम्प्लॉय कोड 1002 एंड 1003। तो you will not find these 1002 and 1003 records in this query, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अगेन गो टू द डिज़ाइन व्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे केवल वो रिकॉर्ड शो हो जिनकी जो सेल्स है वो 25,000 से अबव है, ठीक है। तो आई हैव चेंज द वैल्यू फ्रॉम 20 to 25,000 एंड क्लिकिंग ऑन रन। Now you can see only 2 records are there जिनकी सेल्स 25,000 से ज़्यादा है। तो क्वेरी किस लिए हम यूज़ करते हैं? Why we use query? Queries are used so that we can fetch the specific information from the complete database। एक बहुत बड़े डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है from a large number of records, we can only fetch the specific record we want, ठीक है। ये कंडीशंस जो हैं वो मल्टीपल भी हो सकती हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि केवल उन एम्प्लॉयज़ का डेटा मुझे शो हो, ठीक है, जिनकी सैलरी भी क्या है 35,000 से ज़्यादा है, यानी जिनकी सैलरी 35,000 से ज़्यादा है और जिनकी सेल्स 25,000 से ज़्यादा हुई है। ओनली शो मी दोज रिकॉर्ड्स of those employees whose salary is greater than 35,000 और जिनकी सेल्स जो है वो 25,000 से ज़्यादा है। तो ये मल्टीपल कंडीशंस हो गई हैं। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस रन, नाउ यू कैन सी दैट देयर इज ओनली 1 एम्प्लॉय आउट ऑफ द 6 में से केवल एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सैलरी 35,000 से अबव है और जिसकी सेल भी 25,000 से अबव है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू रन द मल्टीपल क्राइटेरिया, मल्टीपल कंडीशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे, ठीक है ना, हर कॉलम के अंदर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेरी इज क्लियर टू यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस क्वेरी पार्ट इन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे क्वेरीज को, ठीक है। In our next video, in the coming video, we will discuss the query, ठीक है ना, how to write the queries, हम query को लिखते कैसे हैं। Because in CBSE board in class 10th you will find some questions that will ask that write a query to create a table, write a query, okay, to retrieve this much data from the given table, write a query to update this set of values, और राइट अ क्वेरी टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो वो जो क्वेरी लिखने का जो मेथड है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। ये तो हमने एक डिज़ाइन व्यू में ऑटोमेटिक हमें सब कुछ मिल गया है बना हुआ, सो वी हैव जस्ट सेलेक्टेड द फील्ड्स, वी हैव जस्ट गिवन द कंडीशन, बट इफ वी हैव टू एक्चुअली राइट दिस टाइप ऑफ क्वेरी, देन
how we are going to write this, that we are going to learn in our next video, that is part 4. So stay tuned for more updates. If you like this video, please give it a thumb up and share it with your friends and family members. And if you are new to this channel, then please subscribe this channel for more technical video updates. Thank you everyone. Thank you.